webinar our updates 2021 Navi Mumbai Obstetrics and Gynecological Society's annual conference. On this bright sunny Sunday, all fresh with our morning coffee and breakfast in our tummy, let's begin today's session with a lot of zeal and enthusiasm. Today's session, the first lecture, is Understanding Insulin Management of Gestational Diabetes. To deliver this lecture, I would like to invite Dr. Pankaj Agarwal sir. He's a consultant endocrinologist at Hormone Care and Research Center, Ghaziabad. He's the founder of Medical Concepts in Hindi, an attempt to bring modern medical science in our own mother tongue Hindi. Online classes on integrated endocrinology for both PG and UG students, which are also in Hindi. He's the principal investigator in 29 global and 5 national studies, 26 publications in international and national journals, and university examiner for DM endocrinology. Thanawala sir, if you want to say a few words about our esteemed speaker. Yes, sure. So I happened to meet Pankaj in one of these webinars where I was a chief guest, and I was going to just give my ICUG ka Tindora and say a few words and go away. But then I said, let me listen a little bit to Pankaj, and when I started listening, I just stuck on, and I could not leave for that 1 hour because he explains things so well. This is one chap who has his concept so very clear. And if you today want to start insulin on your own, after this lecture, I guarantee you'll be able to do it. So I said, no, Pankaj, you need to come to Navi Mumbai and take a lecture here. And he does it so well, and you just don't feel the difference, whether it's Hindi or English and how it is. So I really salute Pankaj for taking this whole initiative of doing it in Hindi and doing it so very well. So over to you, Pankaj, and we will take a feedback from the audience how they liked it. And you can put your questions in the chat box because Pankaj is there for the next half an hour also with Tejal discussing thyroid disorders. So I thought we will club GDM and thyroid. And the way we are having the thyroid thing is very, very different. We are not going to have a lecture. We are just going to have an open house where you can ask all your queries to these great endocrinologists. I and Rahul will and Dr. Jaideep Tang will be moderating it and seeing that all questions are asked. But first, let's listen to Pankaj. And I sincerely hope you enjoy it. Over to you, Pankaj. A very good morning. धन्यवाद डॉक्टर अंकिता, धन्यवाद डॉक्टर उदय आपके इन वचनों के लिए, और डॉक्टर राहुल धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए, अपनी कॉन्फ्रेंस में आमंत्रित करने के लिए। नमस्कार मित्रों, अगले कुछ समय में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से हम डायबिटीज इन प्रेगनेंसी, डॉक्टर अंकिता ने कहा जेस्टेशनल डायबिटीज, में उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन ये कर लेना चाहता हूँ कि जेस्टेशनल डायबिटीज एक छोटा पार्ट है, डायबिटीज इन प्रेगनेंसी एक बड़ा पार्ट है, और डायबिटीज इन प्रेगनेंसी में हम किस प्रकार से इंसुलिन से मैनेजमेंट कर सकते हैं, इस पर हम ध्यान अपना केंद्रित करेंगे। आप यह सोच सकते हैं कि हम गायनेकोलॉजिस्ट को इंसुलिन बताने की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए प्राइमरीली ये केस आपका है जो फिजिशियन साथ में मैनेज कर रहा है, तो हमें लगातार एक एक बात पे अपनी निगाह भी रखनी है, जिससे कि हम कैसा ओवरऑल सिनेरियो चल रहा है उसको हम सीख सकें, समझ सकें और अपने पेशेंट को भली भांति मैनेज कर सकें। मेडिकल कंसेप्ट्स इन हिंदी हमारा एक ही मिशन है, अपनी मॉडर्न मेडिकल साइंस को अपनी मातृभाषा में लाने का। इसमें ई टेक्स्ट मिलेंगे आपको, वीडियोस और केस स्टडीज मिलेंगी, और यह एक ऐप में जिसको कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, MCH लोगो देखकर उसमें आप इन सब चीज़ों का लाभ उठा सकते हैं। मेडिकोज को एज मेडिको रजिस्टर करना है, अपने पेशेंट्स को भी आप दिलवा सकते हैं, वो एज पब्लिक रजिस्टर कर सकते हैं। हमारा कंसेप्ट यही है कि हम कैसे मेडिकल साइंस को सरल रूप में और सहज रूप में प्रस्तुत करें, जिससे कि वह आसानी से, एक तो भाषा की अड़चन ना हो, और दूसरा वो आसानी से समझते हम चले जाएं और उसको हम प्रैक्टिस में अपनी इम्प्लीमेंट कर सकें, जो बहुत आवश्यक है। हम लोग अक्सर ये देखते हैं कि जो हम लोग मेडिकल कॉन्फ्रेंसेस में सुनते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारी प्रैक्टिस में वो इम्प्लीमेंट नहीं करते, हम कहीं ना कहीं उसको खो देते हैं। इसलिए
अगले कुछ मिनटों में हम जो बात करेंगे वो पूरी क्लिनिकल करेंगे, जिसको हम अपनी प्रैक्टिस में इम्प्लीमेंट कर सकें। एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का हम सहारा जरूर लेंगे, लेकिन एक्सपीरियंस बेस्ड मेडिसिन को हम नहीं भुलाएंगे, क्योंकि एक्सपीरियंस उसमें और 4 चांद लगा देते हैं। सुबह का समय है, मैं जानता हूं आप सोएंगे तो नहीं, लेकिन आपका ध्यान भटकने भी ना दूं, इसके लिए मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछता रहूंगा। क्लैरिनेट से मिस देवलीना हमारे साथ रहेंगी। देवलीना जी, आप तैयार हैं? सर बिल्कुल। धन्यवाद। तो मैं देवलीना जी को बीच बीच में बुलाता रहूंगा, यह कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछती रहेंगी, और यह क्वेश्चंस पोल के रूप में आपके सामने आएंगे। आपको ABCD जो ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करना है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमको किसी ना किसी अप्रोच से तो हमको, हालांकि ये बात सही है कि मेडिकल साइंस में कोई भी एक चीज पूर्ण नहीं होती, पूर्ण सत्य कुछ नहीं है। हम एक कार्य को कई प्रकार से कर सकते हैं, लेकिन किसी ना किसी एक अप्रोच पे तो हमें उंगली रखनी होगी कि ओके, अपने पेशेंट को मैं इस प्रकार से मैनेज करूंगा या करूंगी। तो उसको आप क्लिक करेंगे, 10 सेकंड मिलेंगे इस काम के लिए। उसके बाद हम रिजल्ट डिस्प्ले करेंगे कि कितने लोगों की क्या ओपिनियन है, और इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। सारा डिस्कशन हमारा रियल लाइफ क्लिनिकल केसेस के रूप में होगा, और हम सिचुएशन को एनालाइज करने के साथ साथ हम इन चीजों को डिस्कस करेंगे। हो सकता है कुछ बातों से आप सहमत ना हो सकता है कुछ आपके जवाबों से मैं सहमत ना हो, लेकिन हम लोग इसी तरह से मेडिकल साइंस को डिस्कस करते हुए और आगे बढ़ेंगे। तो आप लोग तैयार हो? राहुल जी, आरंभ करें? ठीक, यस श्योर। धन्यवाद। चलिए, तो शुरुआत ही पहली गेम की बाउंसर। देवलीना जी तैयार रहिएगा, जब मैं कहूंगा तो प्रश्न लॉन्च करिएगा। मित्रों, यदि एक फीमेल 30 वीक्स की प्रेगनेंसी लेके आपके पास आए, आपकी क्लिनिक में आए, और आपने उसका फास्टिंग ग्लूकोज 2 आवर्स आफ्टर 75 ग्राम ग्लूकोज, जैसे कि एक रिकमेंडेशंस हैं आजकल की, जैसे हम लोग नॉन प्रेग्नेंट मेल या फीमेल में हम लोग टेस्ट करते हैं, उसी प्रकार से प्रेगनेंसी में भी कराई जाए। तो ये हमने कराया और HbA1c कराया। वैल्यूज आपके सामने है, 98 फास्टिंग, 187 आफ्टर ग्लूकोज और 6.2 HbA1c। अब आप इसमें लेवल क्या करेंगे? अच्छा, हमको यह आदत अवश्य डालनी है कि हमें डायग्नोसिस क्लियर कट दिखना आवश्यक है अपने प्रिस्क्रिप्शन पे। जब हम डायग्नोसिस क्लियर कट नहीं लिखते तो कहीं ना कहीं हमारा मैनेजमेंट भी क्लियर कट नहीं होता। देवलीना जी, पोल लॉन्च करिए। 10 सेकंड है आपके पास, बहुत आपको तो 2 ही सेकंड लगने हैं। ये पेशेंट को आप टाइप 2 डायबिटीज लिखेंगे, इसको प्री जेस्टेशनल डायबिटीज लिखेंगे, या जेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस GDM लिखेंगे। 10 सेकंड आपके उत्तर देखने के बाद फिर हम लोग इसको आगे डिस्कस करते हैं कि इस पेशेंट में क्या विशेष बात है और हमें कैसे काम करना है। आप डिस्प्ले करिए रिजल्ट्स। वाह, तो हमारी 92% पब्लिक कहती है ये GDM है। हालांकि देखिए 8% प्री जेस्टेशनल डायबिटीज भी कह रहे हैं। और जब हमारी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, कॉन्फ्रेंस का या डिस्कशन का मजा तभी है अगर सभी लोग ये कह दें कि 2 + 2 = 4, तो डिस्कशन खत्म हो जाएगा। तो कुछ 3 वाले हो, कुछ 5 वाले हो, तभी मजा आता है। चलिए देखते हैं। वास्तव में अगर हम देखें, देखिए यहाँ पे कैच क्या है, 30th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में हमें मालूम पड़ा। तो जब हम 30th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में हम देख रहे हैं जो क्लासिकल एक GDM का प्रेजेंटेशन है इन सेकेंड हाफ ऑफ प्रेगनेंसी में, तब हम इसमें GDM पे अपनी निर्भरता बढ़ाएंगे कि कहीं ना कहीं ये GDM होना चाहिए। और क्योंकि इसको हमने लेट डायग्नोज किया, जो लोग 8% कह रहे हैं प्री जेस्टेशनल डायबिटीज, वह भी गलत नहीं है। हो सकता है उस व्यक्ति को पहले से डायबिटीज हो, इस महिला को पहले से डायबिटीज हो, लेकिन वह अभी तक न स्क्रीन की गई, ना अभी तक मालूम पड़ा। तो हमेशा जो आप कह रहे हैं उसकी गुंजाइश कि टाइप 2 डायबिटीज का पेशेंट हो, पहले से नोन तो बताया नहीं इन्होंने, लेकिन प्री जेस्टेशनल डायबिटीज हो अननोन, जो कि अब डिटेक्ट हुई, लेकिन क्योंकि अब डिटेक्ट हुई इसलिए हम उनको GDM कहेंगे, और 30th वीक में है, इसलिए यह आपके सामने इसकी ये डायग्नोसिस बनाई जा रही है। चलिए देवलीना जी, दूसरा प्रश्न है, अभी लॉन्च कीजिएगा। यही व्यक्ति, यही महिला अगर हमारे पास 10 वीक्स की प्रेगनेंसी में आए, 138 फास्टिंग, 217 PP और 7.1 HbA1c, तब आप क्या कहेंगे?
टाइप 2 डायबिटीज, प्री जेस्टेशनल डायबिटीज या जीडीएम। 10 वीक्स की प्रेगनेंसी के साथ सिग्निफिकेंट हाइपरग्लाइसीमिया, फास्टिंग भी, ग्लूकोज लोड के बाद भी और HbA1c के साथ भी। अब आपका उत्तर क्या होगा? हो गए होंगे 10 सेकेंड? यस, तो Should I end, sir? यस डेफिनेटली, मुझसे पूछना नहीं है, 10 सेकेंड बाद आप Okay. उसको ऑटोमेटिकली एंड करके और उसके रिजल्ट्स डिस्प्ले करिए। वाह, ये देखिए 47% लोग कह रहे हैं कि टाइप 2 डायबिटीज और 53% कह रहे हैं प्री जेस्टेशनल डायबिटीज। यही ब्यूटी है, यही इसका मजा है। अब देखिए, टाइप 2 डायबिटीज हम तब कहेंगे यदि व्यक्ति कहे कि मुझे पहले से डायबिटीज है और अब मैं प्रेगनेंसी के साथ में आपके पास आई, तो जिसको नोन डायबिटीज है, फिर हम कहेंगे टाइप 2 डायबिटीज मार्चिंग इनटू प्रेगनेंसी। दूसरी संभावना ये हुई कि पेशेंट को मालूम नहीं था कि उसे डायबिटीज है और वह प्रेगनेंसी में आई, हमने स्क्रीन किया, उसमें डायबिटीज डिटेक्ट होकर आई। अब यह देखिए, यहाँ पे हम 10th वीक में डिटेक्ट कर रहे हैं। क्लासिकली जीडीएम 10th वीक में अपीयर नहीं होती, वह सेकेंड हाफ ऑफ प्रेगनेंसी में अपीयर होती है। तो 10th वीक में है और उस पर भी HbA1c, जो आप जानते हैं कि 3 मंथ्स का एवरेज कंट्रोल बताता है, HbA1c सिग्निफिकेंटली एलिवेटेड। इसका अर्थ क्या हुआ कि डायबिटीज उसको कम से कम 3 महीने से है, और ऐसी डायबिटीज जो पहले से मालूम नहीं थी, पहले से मालूम होती तो टाइप 2 डायबिटीज मार्चिंग इनटू प्रेगनेंसी कहते हैं, अदरवाइज हम उसको कहेंगे प्री जेस्टेशनल डायबिटीज। बट अगेन, सिंस इट इज बीइंग डायग्नोज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो जीडीएम की डायग्नोसिस को तो सेटिस्फाई करती है, जीडीएम लेवल करना तो सेटिस्फाई करती है, लेकिन जीडीएम में वो सबसेट जिसको पहले से डायबिटीज रही होती। आखिर मैं इंसुलिन पे मुझे बोलना था और मैं जीडीएम और प्री एग्जिस्टिंग डायबिटीज पे डिस्कस क्यों कर रहा हूँ, उसके पीछे तथ्य यह है कि हम इसको समझें। क्योंकि अब मैं अगर रिकॉल करूं तो मैं अपने डीएम करने के 2-3-4 साल बाद भी मैं दिमाग में मेरी ये क्लैरिटी नहीं आई कि इन दोनों के बीच में मूलभूत डिफरेंस क्या है। मैं अपनी बुराई क्यों कर रहा हूँ? लोग तो स्टेज पे आके अपने बारे में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, क्योंकि मुझे मालूम था एक जेस्टेशनल डायबिटीज होती है, एक एंटिटी प्री एग्जिस्टिंग डायबिटीज होती है, दूसरी एंटिटी टाइप 2 डायबिटीज मार्चिंग इनटू प्रेगनेंसी होती है, तीसरी एंटिटी, लेकिन रियलाइज नहीं किया था। जो रियलाइजेशन है यही सबसे बड़ी चीज है और यही ब्यूटी है हमारे डिस्कशंस की, हम उसको रियलाइज कर पाए। अगर जेस्टेशनल डायबिटीज होगी, सेकेंड हाफ ऑफ प्रेगनेंसी में होगी, तो उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे? प्रेगनेंसी रिलेटेड आफ्टर इफेक्ट्स होंगे मदर में और ऑफस्प्रिंग में। और प्री एग्जिस्टिंग डायबिटीज तो हो सकती है इसमें भी, लेकिन ट्रू जीडीएम अधिकांश केसेस होते हैं। जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही डिटेक्ट हो जा रही है प्री एग्जिस्टिंग डायबिटीज, वह टाइप 1 भी हो सकती है पेशेंट को जो अनडायग्नोज्ड हो, टाइप 2 भी हो सकती है, और ऐसा भी हो सकता है पहले से डायग्नोज्ड हो और डायबिटीज में आके मालूम पड़े। लेकिन जो मुख्य बात है, इनके ये डिसीजन मेकिंग क्यों आवश्यक है? क्योंकि जो जीडीएम है, जो हमारे सेकेंड थर्ड ट्राइमेस्टर में डायग्नोज हो रही है, उसके इफेक्ट्स मदर और फीटस पे आते हैं, प्रेगनेंसी रिलेटेड आउटकम पे आते हैं, मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशंस के रूप में, फीटल मैक्रोसोमिया के रूप में, ऑब्स्ट्रक्टेड लिवर के रूप में, इंक्रीज नीड फॉर सिजेरियन सेक्शन के रूप में, ये आते हैं। लेकिन जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में है, आप हमसे अच्छा जानते हैं, वो फीटल मेलफॉर्मेशंस के रूप में आते हैं। तो जीडीएम में हमें फीटल मेलफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, जबकि प्री कंसेप्शनल डायबिटीज अगर होगी किसी को, तो वहां पे हमें फीटल मेलफॉर्मेशन, जो कि बहुत ड्रेडेड कॉम्प्लिकेशन है जिसके, वह संभावना ज्यादा होगी। इसलिए, और यह चीज हम समझ के तब जब एग्रेसिवनेस हमारे मन के अंदर तब आएगी। तो ऐसा होता क्यों है? होता इसलिए है क्योंकि प्लेसेंटा के थ्रू सारे न्यूट्रिएंट्स क्रॉस करते हैं, और यह अगर हाइपरग्लाइसीमिया मदर को होगा तो वह बेबी में भी जाएगा। लेकिन यह तो आप जानते हैं कि हर प्रेगनेंसी में कुछ ना कुछ बॉडी में जो हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं, जो प्लेसेंटल हार्मोन्स हैं, जो प्रेगनेंसी रिलेटेड हार्मोन्स हैं, वह सब हाइपरग्लाइसीमिया करा रहे हैं। तो आखिर प्रकृति ऐसा काम करा क्यों रही है? ये तो नेचुरल फिनोमेना है ना। और एक सिद्धांत ये है कि प्रकृति में कोई भी कार्य निरर्थक नहीं होता, बिना किसी मीनिंग के प्रकृति कोई कार्य नहीं करती है। हम और आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन प्रकृति नहीं करती। वो क्यों करती है? इसलिए करती है जिससे मैटरनल सप्लाई इंश्योर की जा सके, जो उसको फीटल सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स इंश्योर किया जा सके। तो इसलिए, क्योंकि प्लेसेंटा के थ्रू पैसेज आप देखिए ना, मदर में अगर इतना हाइपरग्लाइसीमिया है तो फीटस में पहुंचते पहुंचते वो लेवल कम रह जाएंगे। तो इससे पहले कि फीटस अपनी मेटाबॉलिज्म
खुद चला पाए, जब तक वो मदर पे आश्रित है, तब तक हम मैटरनल हाइपरग्लाइसीमिया मेंटेन करें, जिससे फीटस में एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ग्लूकोज पहुंच पाए। फिर आप यह भी जानते हैं कि प्रेगनेंसी में कीटोसिस होती है, बहुत आसानी से जरा सा स्टार्वेशन हुआ, इवन विदाउट स्टार्वेशन वो कीटोसिस में चली जाती है महिला। क्यों जाती है? अगेन कि कीटोन इज ए न्यूट्रिएंट फॉर फीटस, तो फीटस को न्यूट्रिएंट सप्लाई प्रॉपर्ली पहुंचती रहे, इसलिए मदर में हाइपरग्लाइसीमिया होता है, इसलिए मदर में कीटोसिस होती है, जिससे फीटस सर्वाइवल हमारा प्रॉपर हो सके। लेकिन जब इसका क्वांटम ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया ज्यादा हो जाए, क्वांटम ऑफ कीटोसिस ज्यादा हो जाए, तब वो फीटस के लिए डेट्रीमेंटल होती है। कैसे? क्योंकि जो ग्लूकोज गया वह उसने जाके फीटल पैंक्रियाज से इंसुलिन को सिक्रीट कराया, और फीटल इंसुलिन मैक्रोसोमिया करा के और प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस कराती। तो इसलिए जब मैटरनल हाइपरग्लाइसीमिया जितना ज्यादा होता जाएगा, वह फीटल हाइपर इंसुलिनीमिया करेगा, वह फीटस में मैक्रोसोमिया करेगा, और वही हमारे लिए डेट्रीमेंटल है। इसलिए शुरू करने से पहले ये आवश्यक है कि हम अपने गोल्स समझ लें। मदर को हमें हर प्रकार से फास्ट हाइपरग्लाइसीमिया से बचाना है। फास्टिंग शुड बी केप्ट अंडर 95। पोस्ट प्रेंडियल एट 1 आवर, 1 आवर की वैल्यू और तो कहीं है नहीं, केवल प्रेगनेंसी में है। क्यों है? क्योंकि 1 आवर पे आफ्टर मील 1 आवर पे मैक्सिमम हाइपरग्लाइसीमिया होता है, और वह हाइपरग्लाइसीमिया जो ट्रांजिएंट हाइपरग्लाइसीमिया है, वह भी फीटस में जाके फीटस के लिए डेट्रीमेंटल हो सकता है। तो इसलिए 1 आवर हाइपरग्लाइसीमिया वो भी हम ना होने दें, लेस देन 140 रखें। 2 आवर्स हाइपरग्लाइसीमिया ग्लूकोज लेवल वह भी हम 120 से कम रखें। HbA1c प्रेफरेबली लेस देन 6 रखें, जहाँ पे प्रिकेरियस कंडीशन हो वहाँ पे हम 7 तक टॉलरेट कर लें, अदरवाइज लेस देन 6 या मैक्सिमम 6.5 रखें। तो इन टारगेट्स के साथ जब हम काम करेंगे, तब हम मैटरनल और फीटल वेलबींग एश्योर कर पाएंगे। तो यह थी थोड़ी सी रूपरेखा कि हम जिस पेशेंट को इंसुलिन आरंभ करने जा रहे हैं, मैं सीधे इंसुलिन पे पहुंच रहा हूँ, उसके पहले भी 2 एस्पेक्ट्स आते हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और अ पॉसिबिलिटी ऑफ ओरल ड्रग्स। उनके विषय में यदि मैं आपसे पूछूं, यह एक पेशेंट है जीडीएम का, आपके पास आया, इसको देखा गया, जीडीएम डायग्नोज कर चुके हैं हम सपोज 24th वीक पे, और ये अब आप उसको मॉनिटर कर रहे हैं ग्लूकोज लेवल से, फास्टिंग लेवल, आफ्टर ब्रेकफास्ट 1 आवर पे, आफ्टर लंच 2 आवर्स पे, और यह उसका ब्लड ग्लूकोज चार्ट है। अब आप क्या करेंगे? अभी तक आपने उससे कहा कि भाई यू फॉलो प्रॉपर डाइट, यू ऑप्ट फॉर सफिशिएंट टॉलरेबल लेवल्स ऑफ एक्सरसाइजेस। अब आप क्या कहेंगे? उससे कहेंगे यू कंटिन्यू ऑन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, या आप उसको मेडिकल थेरेपी पे रखेंगे लाइक मेटफॉर्मिन, इंसुलिन, या शायद अभी डिसीजन आप नहीं ले पाएंगे। देवलीना जी प्रकट होइए और क्वेश्चन लॉन्च कीजिए। 10 सेकेंड। आप इस पेशेंट में कैसे अप्रोच करना चाहेंगे? अभी ग्लूकोज लेवल ठीक है, उनको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे चलने दें, या हम ओरल ड्रग इंसुलिन किसी पर शिफ्ट करें? यस, पब्लिक हमारी कह रही है 56% लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे हम चलेंगे, और 44% कह रहे हैं कि हम ओरल पे शिफ्ट करना चाहेंगे। बहुत बढ़िया। और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इज ऑलवेज गुड फॉर डिस्कशन। जो रिकमेंडेशन है वो क्या है कि जब हमारी मोर देन 30 to 50% वैल्यूज हमारे टारगेट लेवल को क्रॉस करने लग जाए, तब हमें फार्माकोथेरेपी स्टार्ट करनी है। तो हालांकि आप ये भी कहेंगे 30 to 50% इज बिग नंबर, और हम 30 to 50% क्यों क्रॉस कर देते हैं, हम उसके पहले ही शुरू करें। तो जो कह रहे हैं हम पहले से ओरल ड्रग्स को शुरू करेंगे, वो डेफिनेटली आप बहुत अच्छी, बहुत एग्रेसिव अप्रोच को रखने वाले हैं। मैं भी आपके समर्थन में हूँ। रिकमेंडेशन के अनुसार हम देखें आफ्टर लंच 120 से कम रखनी है 2 आवर्स पे, तो ये हमारी 139 गई। आफ्टर ब्रेकफास्ट 1 आवर पे 140 से कम रखनी है, 152 गई। तो 2 वैल्यूज हैं जिन्होंने हमारे लिमिट्स को क्रॉस किया, बाकी वैल्यूज हमारे विद इन रेंज हैं, और ये भी लिमिट को क्रॉस करनी है तो थोड़ा सा कंपेरेटिवली माइनर डिग्री ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया के साथ, तो शायद हम यहाँ पे अब रिकमेंडेशन को मानते हुए लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन को कंटिन्यू करते हैं। ओके, आप हमसे अच्छा जानते हैं कि डाइट की और एक्सरसाइज की प्रेगनेंसी में क्या अहमियत है, और बड़ा मुश्किल है इन दोनों चीज़ों में एक फाइन बैलेंस बनाना, क्योंकि हमें एडिक्वेट अमाउंट ऑफ कैलोरी देनी है फीटल मैच्योरेशन के लिए, फीटल डेवलपमेंट के लिए,
एक्स्ट्रा कैलोरी होगी, वेट गेन कराएगी, इंसुलिन रेजिस्टेंस कराएगी और डायबिटीज का एग्रेवेशन कराएगी। उससे बचना है हमको कार्बोहाइड्रेट्स को भी एक एडिक्वेट अमाउंट में लेना है जिससे कीटोसिस ना हो, लेकिन ज्यादा हो जाएंगे तो हाइपरग्लाइसीमिया करेंगे। एक्टिविटी भी हमको एक एडिक्वेट अमाउंट में करानी है जिससे फीटल स्ट्रेस ना हो, ज्यादा हो जाएगी तो प्रॉब्लम करेगी। तो इस प्रकार से हमें अपने पेशेंट में फाइन बैलेंस बनाना वो बड़ा मुश्किल है। कई बार हम एग्रेसिव होते हैं, कई बार पेशेंट एग्रेसिव हो जाता है, कई बार हम लीनियंट होते हैं, कई बार पेशेंट लीनियंट हो जाता है। अब ओरल डायबिटिक एंटी डायबिटिक एजेंट्स को हम इतना जल्दी क्यों नहीं शुरू करना चाहते? कारण उसका यह है कि जो सल्फोनिलयूरियाज, ये बातें हैं आज से 20 से 30 साल पहले की, जब सल्फोनिलयूरियाज और मेटफॉर्मिन ये दो एजेंट्स हमारे पास थे और कुछ नहीं। और ये दोनों एजेंट्स के बाद विषय में क्या देखा गया कि सल्फोनिलयूरियाज हमारे प्लेसेंटा क्रॉस करके और फीटल पैंक्रियास में इंसुलिन सिक्रेटोगॉग की तरह काम करते हैं। तो मदर में भी इंसुलिन सिक्रेट कराते हैं और फीटस में भी इंसुलिन सिक्रेट कराते हैं, जिससे फीटल में हाइपर इंसुलिनीमिया हो, और इंसुलिन इज अ ग्रोथ फैक्टर, वह फीटल मैक्रोसोमिया करता है, उससे फीटस में न्यूबॉर्न में हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। इसलिए सल्फोनिलयूरियाज कंट्राइंडिकेटेड रहे काफी समय तक। लेकिन एक प्रश्न मैं आपसे पूछूं कि जो हमारी मेटफॉर्मिन काफी कुछ अप्रूवल की स्टेज में है, ग्लिबिनक्लामाइड हम कहते हैं आउट ऑफ ऑल सल्फोनिलयूरिया ग्लिबिनक्लामाइड हम दे सकते हैं प्रेगनेंसी में, इंसुलिन नो डाउट गोल्ड स्टैंडर्ड है। आखिर इनमें से 3 ड्रग्स अगर हम देखें तो इसमें प्लेसेंटा क्रॉस कौन कौन सी मेडिसिन करती हैं सिग्निफिकेंट अमाउंट में? मेटफॉर्मिन करती है, ग्लिबिनक्लामाइड करती है, इंसुलिन करती है, या ए और बी करती है, या इनमें से कोई क्रॉस नहीं करती? क्योंकि ग्लिबिनक्लामाइड हमने अलाउ की है, मेटफॉर्मिन अलाउ की है। देवलीना जी पूछिए, पब्लिक क्या कहती है कि इनमें से कौन सी ड्रग्स हैं जो प्लेसेंटा को सिग्निफिकेंट अमाउंट में क्रॉस करती है? माइनर अगर पैसेज हो तो बात अलग है, सिग्निफिकेंट अमाउंट कौन कौन सी ड्रग्स क्रॉस करती हैं? ए, बी, सी या ए बी? रिजल्ट डिस्प्ले कीजिए। वाह, पब्लिक 45% कह रही है ए बी, वेरी गुड। 36% कह रहे हैं नन, बहुत बढ़िया। 18% कह रहे हैं ग्लिबिनक्लामाइड, क्योंकि मैंने कहा है कि सल्फोनिलयूरियाज प्लेसेंटा क्रॉस करती हैं और इसीलिए डेट्रीमेंटल होती हैं। ग्लिबिनक्लामाइड भी सल्फोनिलयूरिया है। तो जो आप कह रहे हैं बहुत अच्छा कह रहे हैं, आपकी राय सर माथे पर। चलिए, मेटफॉर्मिन प्लेसेंटा क्रॉस करती है और आश्चर्य की बात यह है कि फीटल लेवल मैटरनल लेवल से भी ज्यादा होते हैं। फीटस में उसका लेवल ज्यादा होता है, तब भी मेटफॉर्मिन has been found to be a good drug to be used in pregnancy. ग्लिबिनक्लामाइड भी सिग्निफिकेंट अमाउंट में क्रॉस करती है, तो दोनों क्रॉस करती हैं, लेकिन समहाउ इसके इफेक्ट्स ग्लिबिनक्लामाइड के बाकी सल्फोनिलयूरियाज के कंपैरिजन में बहुत कम देखे गए फीटल मैक्रोसोमिया करने में, और इसलिए इसको अलाउ किया गया। इंसुलिन क्रॉस नहीं करती। इंसुलिन जैसे ही प्लेसेंटा से क्रॉस करती है, इंसुलिनेज एंजाइम उसको डिग्रेड कर देता है। तो इंसुलिन का इफेक्ट केवल मदर पे होता है। मेटफॉर्मिन और ग्लिबिनक्लामाइड फीटस पर भी अपना प्रभाव डालती हैं। तो मेटफॉर्मिन, ग्लिबिनक्लामाइड, इंसुलिन तीनों किसी न किसी रूप में प्रेगनेंसी में आफ्टर मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी हैज बीन फाउंड टू बी अनसक्सेसफुल, उसमें एडवाइस की गई है। इंसुलिन ड्रग ऑफ चॉइस है, लेकिन बाकी मेडिसिन भी सिलेक्टेड केसेस में दी जा सकती है। तो अब इस बैकग्राउंड के साथ में एक लेडी आपके पास आती है, डायबिटीज, प्रेगनेंसी, आपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन दिया, कंट्रोल नहीं हुई, मेटफॉर्मिन दिया, कंट्रोल नहीं हुई। 2000 मिलीग्राम मेटफॉर्मिन मैक्सिमम टॉलरेटेड डोज, मैक्सिमम प्रेस्क्राइबेबल डोज, उसके ऊपर जब ये लेडी आती है, आप देख रहे हैं सारी फास्टिंग एलिवेटेड है, पोस्ट प्रैंडियल आफ्टर ब्रेकफास्ट माइनर एलिवेशन में है, आफ्टर लंच माइनर एलिवेशन में है। इसको अब हमें मैनेज करना है। अब इसको इंसुलिन कौन सी देंगे? हो सकता है आप कहें भाई दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी, आई विल रेफर टू फिजिशियन डायरेक्टली, वो करेगा जो करना होगा। लेकिन केस पर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, तो यू शुड कीप ए वॉच, जो हो रहा है वो सही हो रहा है, नहीं हो रहा है, और आपको उसकी समझ जरूर होनी चाहिए। तो इसलिए प्रश्न आपसे देवलीना जी, चलिए डिस्प्ले करिए पोल के क्वेश्चंस, ऑल्टरनेटिव्स। इसमें यदि आपका फिजिशियन रेगुलर इंसुलिन दे रहा है, दूसरे ने कहा नहीं 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 भाई रेगुलर इंसुलिन तो आउटडेटेड हो गई, हम तो इसको डिजाइनर इंसुलिन देंगे, शॉर्ट एक्टिंग एनालॉग्स,
तीसरा एनपीएच कह रहा है, चौथा डेटामिर या ग्लार्जिन कह रहा है। तो इसमें से राइट आंसर क्या है? बहुत बढ़िया। देखिए, ये क्लिनिकल प्रैक्टिस में हमेशा डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन होंगे और वही हम यहाँ पे देख रहे हैं। रेगुलर इंसुलिन 44%, एनपीएच इंसुलिन 44%। पता नहीं क्यों लोगों ने डेटामिर ग्लार्जिन को नहीं चुना, कुछ तो इस पर भी आने चाहिए थे। और बाकी शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन एनालॉग्स। आइए इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ से हम लोग इंसुलिन पे परिचर्चा आरंभ करते हैं। यदि इस व्यक्ति में, हम इस महिला में देखें तो पोस्ट प्रेंडियल वैल्यूज ये 1 आवर पे 140 होनी चाहिए थी, जो कि माइल्डली एलिवेटेड है। 2 आवर्स पे 120 होनी चाहिए थी, माइल्डली एलिवेटेड है। फास्टिंग पे 95 होनी चाहिए थी, माइल्डली एलिवेटेड। तो मेन, अगर हम इस लेडी में देखें तो मेन प्रॉब्लम इज फास्टिंग हाइपरग्लाइसेमिया। विशेष रूप से जिन महिलाओं के इंट्राएब्डोमिनल फैट ज्यादा होता है, दिस इंट्राएब्डोमिनल फैट इट गोज टू लिवर एंड वर्क्स एज ए सबस्ट्रेट फॉर ग्लूकोज प्रोडक्शन। तो जो अर्ली मॉर्निंग ग्लूकोज प्रोडक्शन होता है, हेपेटिक ग्लूकोज प्रोडक्शन, वह है जो ओबीज इंडिविजुअल्स में होता है। तो सेंट्रल ओबेसिटी के साथ फास्टिंग हाइपरग्लाइसीमिया एक बहुत ही यूनिक फीचर है। हो सकता है ये लेडी ओबीज रही हो और इसको फास्टिंग हाइपरग्लाइसीमिया विशेष रूप से अभी भी चल रहा है। फास्टिंग हाइपरग्लाइसीमिया के लिए कौन सी मेडिसिन होंगी? बेसल इंसुलिन, इंटरमीडिएट एक्टिंग एनपीएच या लॉन्ग एक्टिंग डेटामिर या ग्लार्जिन। तो जब भी हमारा फास्टिंग हाइपरग्लाइसीमिया हो, जो रिकमेंडेशंस है एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडिया की 2017 की, वह क्लियर कट कहती है कि फास्टिंग हाइपरग्लाइसीमिया हो तो इवनिंग में आप एक इंटरमीडिएट या लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन दीजिए, जो कि हेपेटिक ग्लूकोज प्रोडक्शन कम करके फास्टिंग हाइपरग्लाइसीमिया को कम करे और पेशेंट को हमारे एक एडिक्वेट कंट्रोल ऑफर कर सके। कहीं कहीं हम इसमें प्री मिक्स इंसुलिन, जिसमें कि इंटरमीडिएट एक्टिंग एनपीएच और शॉर्ट एक्टिंग दोनों मिली हो, हम उसको भी दे सकते हैं रात में बिफोर डिनर। लेकिन यह भी ध्यान रखना है कि वह इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन क्या करेगी, अगर हम पीछे जाएं, वह आफ्टर डिनर की वैल्यू को भी कम करेगी, क्योंकि उसमें शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन होगी। और आफ्टर डिनर हमने चेक ही नहीं किया तो हमें मालूम ही नहीं, हो सकता है वह भी इसी की तरह से माइल्डली अनकंट्रोल्ड हो। तो माइल्ड अनकंट्रोल के साथ हम उसको उस वक्त इंसुलिन भी देंगे तो रात में हाइपोग्लाइसीमिया होने के चांस ज्यादा होंगे। इसलिए हम प्री मिक्स की जगह पे बेसल या इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन दें। जो मैं कह रहा हूँ उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। यह है एनपीएच इंसुलिन, जो कि देने के बाद 6-7-8 घंटे पे पीक असर रखती है और धीरे धीरे 12-14 घंटे पे असर खत्म हो जाता है। एनपीएच 12-14 घंटे काम करती है, इसलिए हमें दिन में 2 बार देनी पड़ती है। डेटामिर यह वह इंसुलिन है जो कि प्लेन इंसुलिन, एनपीएच इंसुलिन के बाद तीसरी इंसुलिन जो प्रेगनेंसी में अप्रूव्ड है, डेटामिर, जो कि लगभग 18 घंटे काम करती है। तो 18 घंटे से इसमें भी हमारा पूरे 24 घंटे काम नहीं चल रहा है, इसलिए इसको भी हमें दिन में 2 बार देना पड़ सकता है। ग्लार्जिन अप्रूव्ड नहीं है, लेकिन अगर कहा जाए कि सबसे ज्यादा इंसुलिन यूज होती कौन सी है, तो ग्लार्जिन ही है। तो ग्लार्जिन लगभग 24 घंटे 22-23 घंटे काम करती है और ये एक ट्रू बेसल इंसुलिन की तरह से बिहेव करती है। इसको हम वंस अ डे दे सकते हैं। तो यदि हम देखते हैं कि हमारी इंसुलिन हमें स्टार्ट कब करनी है, जब परसिस्टेंटली फास्टिंग या पीपी वैल्यूज एलिवेटेड हो, फास्टिंग हाइपरग्लाइसीमिया हो, तब हम इवनिंग में एनपीएच या ग्लार्जिन इंसुलिन या डेटामिर आरंभ करेंगे। अब अमेरिकन कॉलेज ऑफ ऑब्स एंड गायनी की जो रिकमेंडेशंस हैं वह है कि स्टार्टिंग टोटल डोज ऑफ इंसुलिन 0.7 to 1 यूनिट पर केजी इन डिवाइडेड डोजेस, इस पर शुरू की जाए। इसका अर्थ क्या हुआ? हमारी जो इंडियन गाइडलाइंस हैं आरएसएसडीआई की, वह भी क्या कहती हैं कि वेट बेस्ड डोजिंग अगर हम करते हैं तो 0.7 to 1 यूनिट पर केजी करें। अगर ट्राइमेस्टर भी जोड़ देते हैं तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में रिक्वायरमेंट कम है, क्योंकि प्लेसेंटल हार्मोन्स जो काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स है, इंसुलिन के एंटागोनिस्टिक हार्मोन्स है, वो कम है। सेकंड में थोड़े बढ़ गए तो डोज थोड़ी और ज्यादा होगी। थर्ड में और ज्यादा बढ़ गए, डोज और ज्यादा होगी। इसलिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 0.7 यूनिट, सेकेंड ट्राइमेस्टर में 0.8 यूनिट और थर्ड ट्राइमेस्टर में 0.9 या हायर यूनिट्स, ये हम यूज करें। 50% बेसल, 50% बोलस, इस तरह से डिवाइड करके हम उसको दें। मतलब क्या हो, जो भी हम पढ़ रहे हैं उसको हमें ट्रांसलेट करना है क्लिनिकल प्रैक्टिस में। यूजुअल अगर हम फिगर लेके चलें 60 kg की,
तो वेट बेस्ड मैनेजमेंट में 40 to 60 यूनिट पर केजी हम यूज करेंगे किसी लेडी में। तो इसको हमने डिवाइड क्या कर दिया, 50% बेसल में 20 to 30 यूनिट और 50% बोलस, तो 30 यूनिट्स तक वो हुई। तो 7 to 10 यूनिट्स बिफोर ब्रेकफास्ट, 7 to 10 यूनिट्स बिफोर लंच, 7 to 10 यूनिट्स बिफोर डिनर। तो इस प्रकार से यदि हम अपने रिकमेंडेशंस की सहायता से इस पेशेंट को मैनेज करना चाहें तो चलिए देखते हैं क्या होता है। डायबिटीज मेलिटस विद प्रेगनेंसी और मेटफॉर्मिन 2000 पे ये पेशेंट अनकंट्रोल्ड थी। मैं केवल फास्टिंग को टेकअप कर रहा हूँ क्योंकि फास्टिंग अनकंट्रोल्ड है, पीपी कंट्रोल्ड है। अब यहाँ पे हमने देखा कि मेटफॉर्मिन ले रही थी, रिकमेंडेशंस के अनुसार हमने 20 यूनिट्स उसको एट बेड टाइम एनपीएच यूनिट से स्टार्ट किया। नेक्स्ट डे वाह मजा आ गया, 89, नेक्स्ट डे बहुत बढ़िया 82, नेक्स्ट डे हम उसके फास्टिंग देखें कितना अच्छा रिस्पॉन्ड कर रही है, लेकिन थर्ड डे 65 बहुत कम चली गई और पेशेंट ने कंप्लेंट की कि रात में बहुत डिस्कम्फर्ट हो रहा था, डॉक्टर साहब आपने बताया था टेस्ट कर लेना, तो मैंने चेक किया एंड आई फाउंड इट 54। बड़ा डिस्कम्फर्ट हो रहा था, फिर चीनी घोल के पी, फिर खाना खाया, 2 लड्डू भी खाए, दावत तो खूब अच्छी हुई, फिर मुझे आराम आया। क्या करूं? मैं आपसे पूछता हूं कि हाइपोग्लाइसीमिया क्यों हुआ? जैसा रिकमेंडेशन ने कहा हमने वैसे ही काम किया। उसने कहा वेट बेस्ड मैनेजमेंट के हिसाब से 0.7 to 1 यूनिट पर केजी, हमने 0.7 के हिसाब से कैलकुलेट की और एनपीएच की 20 यूनिट्स दी, हमने रेगुलर भी नहीं दी। पेशेंट को हाइपो क्यों हुआ? चलिए हाइपो क्यों हुआ, इसका कारण है एनपीएच की पीक। एनपीएच एक ऐसी इंसुलिन है जो कि शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन तो वो एब्रप्टली काम करती है, लेकिन एनपीएच में भी काफी पीक है जो रात में 6 आवर्स के अराउंड पे उसका पीक असर आता है। तो मिडनाइट पेशेंट सो रहा है, रात में डिनर लेके इंसुलिन लेके सोया, मिडनाइट में जब एनपीएच की पीक आई तब उसको हाइपोग्लाइसीमिया हुआ। तो इस लेडी में इस एनपीएच की पीक इफेक्ट के कारण से हाइपोग्लाइसीमिया हुआ। अब यहाँ पे एक्सपीरियंस को मैं ऐड करता हूँ। अभी तक हम एविडेंसेस के अनुसार चले, जो एक्सपीरियंसेस कहते हैं वो कहते हैं कभी भी बहुत ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश ना करो। पहले पेशेंट को पहचानो, पहले एक रेपो डेवलप करो, स्टार्ट लो एंड गो स्लो। पहले देखो कि उस पेशेंट में इंसुलिन का रिस्पॉन्स क्या है। तो कभी भी लार्ज डोज से स्टार्ट नहीं करेंगे, स्मॉल डोज से स्टार्ट करेंगे। यदि आप पूछें कि तुम क्या करोगे, मैं 0.1 यूनिट पर केजी बॉडी वेट से स्टार्ट करता हूँ। भाई तुम कहाँ से अनूठे आदमी हो, ऐसे तुम्हारी रिकमेंडेशन, इतनी बड़ी बड़ी सोसाइटी बेवकूफ है क्या? 0.7 से कर रही है, तुम 0.1 यूनिट की बात कर रहे हो। मैं उसका भी लॉजिक देने की कोशिश करूंगा कि 0.1 यूनिट पर केजी से मैं क्यों स्टार्ट करूंगा, कि जो सोसाइटीज ने कहा है वह उस स्थिति में कहा है। देखिए यह बात है जो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि रिकमेंडेशन को समझने के लिए हमें बातों की तह पर जाना पड़ेगा। मैंने आपसे कहा कि मैं जीडीएम और प्री एग्जिस्टिंग डायबिटीज को पढ़ता रहा, पढ़ाता भी रहा रेजिडेंट्स को, लेकिन खुद मैंने रियलाइज 3-4 साल बाद 5 साल बाद किया कि दोनों की ग्रेविटी में क्या डिफरेंस है। यहाँ पर उस ग्रेविटी का डिफरेंस है केवल। यह रिकमेंडेशन उस समय के लिए कही गई है जब प्री एग्जिस्टिंग डायबिटीज हो, पेशेंट को सोनली इंसुलिन पे मैनेज करना है, कोई और हम मेटफॉर्मिन नहीं दे रहे, हम उसको ग्लिबिनक्लामाइड नहीं दे रहे, और ऐसे केसेस में सिग्निफिकेंट हाइपरग्लाइसीमिया। जब वो जीडीएम की स्टेज में आए, जब माइल्ड हाइपरग्लाइसीमिया की स्टेज में आए, जब मेटफॉर्मिन भी दे रहे हो, तब हमको स्ट्रेट में उठा के 0.7 to 1 यूनिट पर केजी नहीं स्टार्ट कर देना। तो हमें इस केस में क्या करना चाहिए था कि हमें इस केस में स्लोली और माइल्डर डोजेस से स्टार्ट करना चाहिए था। 6 यूनिट से अगर हम स्टार्ट करते, जैसे इसी केस में अब हमने क्या किया, 20 यूनिट पे देखा हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है, डोजेस रिड्यूस की, देखा 119 आया फास्टिंग। नेक्स्ट डे अब हम क्या करें, फिर से रिकमेंडेशंस की हेल्प लेते हैं। बेसल इंसुलिन लो डोज से स्टार्ट कर रहे हैं, रिकमेंडेशंस कहती हैं कि लेस देन 70 हो फास्टिंग, डोज कम कर दो। 70 to 95 जो कि टारगेट है, सेम डोज चलाओ, और 95 के प्लस हो तो इंसुलिन की डोजेस को ग्रेजुअली बढ़ाते जाओ जब तक कि वो पेशेंट कंट्रोल ना हो जाए। हमारे पेशेंट की इस ग्लूकोज इस रेंज में फॉल कर रही है, 4 यूनिट्स बढ़ाने का आदेश ये रिकमेंडेशन दे रही है। चलिए 4 यूनिट बढ़ा के हमने 10 यूनिट्स दिया, अगले दिन पेशेंट को फिर हाइपो हो गया।
अब क्या हुआ, ये क्यों हुआ? तो इसका मतलब क्या हुआ कि 4 यूनिट का इंक्रीमेंट, फिर आप मुझसे पूछे तो मैं कहूंगा कि 4 यूनिट का इंक्रीमेंट एक साथ करने से बचिए। 2-4 दिनों में कोई आफत नहीं आ रही। 4 यूनिट बढ़ाना है तो हम 2 यूनिट एक दिन, 2 यूनिट एक दिन करके तब बढ़ाएंगे, और उससे हम अपने पेशेंट को मेंटेन करेंगे। इस पेशेंट में अगर हम देखें 72 आई इसकी फास्टिंग ग्लूकोज, और रिकमेंडेशन कह रही है कोई चेंज मत करो, लेकिन पेशेंट अनकंफर्टेबल है, हम कैसे छोड़ दें? तो समहाउ मैं जो लोअर लिमिट है वो 17 नहीं रख पाता, मैं अपने पेशेंट में लोअर लिमिट 80 रखता हूँ, क्योंकि मेरा पेशेंट, मुझे नहीं मालूम कि मैं कितना एक्सेसिबल होऊंगा उसके लिए रात में, मुझे नहीं मालूम वो कितने हॉस्पिटल्स उसको इमरजेंसी मैनेजमेंट ऑफर प्रॉपरली कर पाएंगे, मुझे नहीं मालूम पेशेंट कितना समझदार है, कितना अच्छे से कंप्लाई कर पाएगा। तो इसलिए मैं लोअर लिमिट 80 रख के चलता हूँ कि जब 80 से कम हो तभी 2 यूनिट घटा देता हूँ, बजाय 70 तक की वैल्यू को वेट करने पे। तो मैं अपने अनुसार मैंने इसकी 2 यूनिट घटाई, अगले दिन देखा 83 थी, मैंने सेम यूनिट कंटिन्यू की, और लेकिन अगले दिन देखा 113 हो गई। ये भी भाई बात समझ में नहीं आई कि पहले पेशेंट अच्छा कंप्लाई कर रहा था, अब ये 113 की हो गई, और रात में फिर देखा हाइपोग्लाइसीमिया हो गया। अब हाइपोग्लाइसीमिया क्यों हुआ? फिर वही याद रखें, एनपीएच मिडनाइट में पीक करती है, डोज कम भी है तब भी उसका पीक असर तो आएगा, तो वह हाइपोग्लाइसीमिया करा सकती है। तो बेटर ऑल्टरनेटिव होगा यदि हम इन पे जाएं कि लेस पीकिंग इंसुलिन डेटमेर या और कम लेस पीकिंग इंसुलिन ग्लार्जिन, यदि हम इसको यूज करें तो इस मिडनाइट हाइपोग्लाइसीमिया को हम बचा सकते हैं। तो एनपीएच हमारे पास आज से 20 साल पहले एक यही इंसुलिन थी, लेकिन अब हमारे पास डेटेमिर ग्लार्जिन जैसे इंसुलिन है, तो हम क्यों पेशेंट को एट रिस्क ऑफ मिडनाइट हाइपोग्लाइसीमिया डालें? हम उनको ये वाली इंसुलिन देते हैं, एनालॉग्स देते हैं, और जब हम देखिए उसको पेशेंट को हमने शिफ्ट किया तो पेशेंट की ग्लूकोज लेवल ठीक रहा, हाइपो भी नहीं हुआ। नेक्स्ट डे 2 यूनिट्स बढ़ाया, फास्टिंग 97 आया, अभी भी ज़्यादा है। नेक्स्ट डे फिर 2 यूनिट्स बढ़ाया, फास्टिंग अंडर 95 आ गई, सेम यूनिट कंटिन्यू की, और हमने देखा कि फास्टिंग उसकी वेरी वेल कंट्रोल। और मिडनाइट चेक करके देखा कि हाइपो तो नहीं है, देखा मिडनाइट भी ठीक है, पेशेंट कंफर्टेबल है, सेफ है। इस प्रकार से हम इसको मैनेज कर सकें। तो संदेश क्या है इस पेशेंट में? यदि फास्टिंग हाइपरग्लाइसीमिया है तो हमें बेजल इंसुलिन देनी है, एट बेड टाइम देनी है। एनपीएच इज गोल्ड स्टैंडर्ड, लेकिन एनपीएच के पीकिंग इफेक्ट के कारण से मिडनाइट हाइपोग्लाइसीमिया का चांस होता है, इसलिए वी कैन ऑप्ट फॉर लॉन्गर एक्टिंग इंसुलिन एनालॉग्स। डेटामिर अप्रूव्ड है लेकिन यूज कम होती है, ग्लार्जिन अप्रूव्ड नहीं है लेकिन फिर भी यूज ज्यादा होती है। एंड anecdotally or in clinical practice, if you ask anybody, we all have found it safe in our clinical practice but not effective. तो इस एक्शन प्रोफाइल को अगर हम ध्यान रखें तो हम अपनी डिसीजन मेकिंग बेहतर तरीके से कर पाते हैं। ओके, चलिए हम लोग एक अगले केस पे शिफ्ट होते हैं। सेम यही महिला अगर डायबिटीज विद प्रेगनेंसी अनकंट्रोल्ड ऑन मेटफॉर्मिन के साथ आई होती, यह ग्लूकोज चार्ट लेके, तो हमारा आगे का क्लिनिकल डिसीजन क्या होता? इस पेशेंट को आप कौन सी इंसुलिन देना चाहेंगे और इसको किस प्रकार से मैनेज करना चाहेंगे? फास्टिंग देख रहे हैं आप 101, 109, 107, आफ्टर 1 आवर 187, 181, आफ्टर 2 आवर 159, 159। देवलीना जी पोल लॉन्च कीजिए, देखें जनता क्या कहती है। यह पेशेंट सिमिलर केस, डिफरेंट प्रेजेंटेशन, डिफरेंट डिग्रीज ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया, आप क्या इसमें समझते हैं और क्या करते हैं? वाह, चलिए आपकी ये सबसे अच्छी बात है कि चारों पे निशान है। तो 27% कहते हैं ग्लार्जिन डेटिमिर देंगे, 18% कहते हैं एनपीएच देंगे, 18% कहते हैं शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन एनालॉग्स देंगे, और 36% मैक्सिमम लोग रेगुलर इंसुलिन के साथ। चलिए बहुत बढ़िया, तो इनको हम लोग समझते हैं। देखिए इस महिला में प्रॉब्लम क्या है? इस महिला में प्रॉब्लम है कि जो फास्टिंग ग्लूकोज लेवल्स है 95 तक होने चाहिए, वो 95 से ज्यादा है ना?
लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, अगर हम कहें कि 10-15 ज़्यादा है। और आफ्टर 1 आवर ऑफ ब्रेकफास्ट 140 होनी चाहिए, 47, 41 ज़्यादा। आफ्टर लंच 2 आवर्स ऑफ वैल्यू पे 120 होनी चाहिए, 30 और 31 ज़्यादा, 39 और 31 ज़्यादा। तो प्रिडोमिनेंटली इस महिला को पोस्ट प्रेंडियल हाइपरग्लाइसीमिया है विद माइल्ड डिग्री ऑफ फास्टिंग हाइपरग्लाइसीमिया। तो यहाँ पे हमें जो इंसुलिन सेलेक्ट करनी है वो इंसुलिन सेलेक्ट करनी है जो पोस्ट प्रेंडियल लेवल्स पे अच्छा काम करे। मॉर्निंग में अगर हम दें तो आफ्टर ब्रेकफास्ट, बिफोर लंच दें तो आफ्टर लंच, इन वैल्यूज को अच्छा कंट्रोल कर सके। तो हमारा टारगेट क्या है कि पोस्ट प्रेंडियल 140 से कम 1 आवर पे, पोस्ट प्रेंडियल 2 आवर्स पे 120 से कम हमको रखना है। और जब हम देख रहे हैं इसके ऊपर जा रही है तो एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडिया की रिकमेंडेशंस है 4 यूनिट प्रेंडियल इंसुलिन से स्टार्ट करो, जिससे इस पोस्ट प्रेंडियल एक्सकर्शन को हम कवर कर सकें। राइट, चलिए इस रिकमेंडेशन के साथ में हम इनको ट्रीट करते हैं देवी जी को। मेटफॉर्मिन 2000 के साथ में 4 यूनिट रेगुलर इंसुलिन हमने बिफोर ब्रेकफास्ट ऐड की, तो अगले दिन हमने देखा कि फास्टिंग तो वैसे ही रही, लेकिन आफ्टर ब्रेकफास्ट ओके थोड़ी सी फॉल की। अब क्या करें? फिर रिकमेंडेशंस की सहायता लेते हैं। रिकमेंडेशंस कह रही हैं कि अगर 160 से ऊपर हो तो 6 यूनिट्स डोज बढ़ा दो। भाई मुझे तो डर लगता है, तो मैं हीरो नहीं बनना चाहूँगा, मैं 2 यूनिट बढ़ाना चाहूँगा। एक बार हाथ जला चुका हूँ पिछले केस में, रिकमेंडेशन के आधार पे हमने एकदम से हाई डोज की, तो मैं 2 यूनिट बढ़ा के देखता हूँ क्या हुआ। 172 था, 6 यूनिट किया, देखा 169 हुआ, अभी भी नॉर्मल नहीं आया। 8 यूनिट किया, 167, अभी भी मजा नहीं आया। रिकमेंडेशन सही कह रही थी, मैं ही बेवकूफ़ी कर रहा था 2 यूनिट करके बढ़ाने की। लेकिन पेशेंट को बिफोर लंच हाइपोग्लाइसीमिया, यह क्यों हुआ? हमारी आफ्टर ब्रेकफास्ट तो कंट्रोल आई नहीं, बिफोर लंच हाइपो और हो गया। तो 1 सप्ताह बीत गया, ना फास्टिंग कंट्रोल हुई, ना पीपी कंट्रोल हुई। तो पंकज जी, आपकी अक्लमंदी से मुझे डाउट होने लगा। बहुत धीरे चलने के चक्कर में आपने पेशेंट का 1 सप्ताह खराब किया। समझते हैं क्या गड़बड़ियां हुई। रेगुलर इंसुलिन इस प्रकार से काम करती है, जब हम देते हैं आधे घंटे में काम करना आरंभ करती है, 2 से 4 घंटे में पीक होता है और 6 से 8 घंटे तक वो काम करती है। इससे होता क्या है, 2 से 4 घंटे में पीक होता है। जो हम खाना खाते हैं उसका पीक होता है 1 घंटे पर, उससे जो ग्लूकोज रिलीज होती है फर्स्ट आवर में पीक करती है, और हमारी इंसुलिन कर रही है 2 to 4 आवर में पीक, तो वो उससे लेट है, तो उससे पहले हाइपरग्लाइसीमिया बना रहेगा। तो यहाँ हम देखें, अगर इस पेशेंट की 1 आवर वैल्यू कोई कंट्रोल नहीं आई, क्यों नहीं आई? क्योंकि हमारी इंसुलिन काम ही नहीं करती उस वक्त, तो इसलिए। दूसरी चीज, लेट पोस्ट प्रेंडियल आवर, खाना हम जो भी खाते हैं 2, 3, मैक्सिमम 4 घंटे में वो डाइजेस्ट होके और उससे ग्लूकोज की रिलीज खत्म हो जाती है। हमारी इंसुलिन 2 to 4 आवर पीक काम करती है, 4 to 8 आवर ट्रेलिंग उसका इफेक्ट रहता है। फिर क्या हुआ, यहाँ पे इस पेशेंट को बिफोर लंच 54 ग्लूकोज रह गई। क्यों? क्योंकि बिफोर लंच इंसुलिन काम कर रही थी और खाना पेट में खाली हो चुका था। तो यह प्रॉब्लम है जब हम रेगुलर इंसुलिन लगाते हैं। यदि हम रेगुलर की जगह शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन एनालॉग्स, एस्पार्ट, रिस्प्रो, ग्लूलाइसिन, ये जो है यह लगाएं, तो इनका जो आप देखिए ना एब्रप्ट एक्शन स्टार्ट हो रहा है। ये 15 मिनट में काम करना शुरू कर देती हैं, 1 आवर तक उनका पीक इफेक्ट रहता है जो कि नॉर्मल ग्लूकोज रिलीज होती है, और 4 आवर्स में इफेक्ट खत्म हो जाता है, जिससे यह मील रिलेटेड ग्लाइसेमिक एक्सकर्शंस को ज्यादा मैच करती है। तो ये हम शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन एनालॉग्स अगर हम देते हैं, तो इस लेडी को हमने क्या किया, हमने देखा उसको आफ्टर ब्रेकफास्ट कंट्रोल नहीं हुई, बिफोर लंच हाइपो हुआ, तो हमने उसको शिफ्ट कर दिया दूसरी इंसुलिन पे। और शिफ्ट करने पे हमने क्या देखा कि नेक्स्ट डे वाह, आफ्टर ब्रेकफास्ट तुरंत कंट्रोल हो गई, आफ्टर लंच कंट्रोल नहीं हुई, लेकिन जो बिफोर लंच हाइपो हो रहा था वो बंद हो गया। इससे फायदा क्या हुआ, ग्लूटाइसिन देने से हमारी आफ्टर ब्रेकफास्ट कंट्रोल आ गई, बिफोर लंच हाइपो बंद हो गया, लेकिन आफ्टर लंच वैल्यू कंट्रोल नहीं हुई और फास्टिंग भी हमारी कंट्रोल नहीं हुई। ये क्यों? इससे क्या फायदा हुआ, ये इससे हमारा काम क्यों नहीं चला? क्योंकि ये जो शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन है हमारी,
हमने आपसे बात की 4 घंटे काम करती है, सुबह देंगे सुबह का काम कर देगी। अब दोपहर खाने के पहले तुमने यूज की नहीं, इसलिए दोपहर लंच के बाद जो वैल्यू बढ़ रही है उसको कंट्रोल करने के लिए हमको एक सेकेंड डोज देनी पड़ेगी। तो यदि हमें आफ्टर ब्रेकफास्ट कंट्रोल करनी है तो उसके लिए मॉर्निंग डोज, आफ्टर लंच कंट्रोल करनी है उसके लिए बिफोर लंच डोज, और फास्टिंग के लिए जो फास्टिंग है, फास्टिंग के लिए हमें अलग काम करना होगा। इस पेशेंट में हमने दोपहर में भी जैसे इंसुलिन जोड़ी, और ये देखिए आप उसका मैनेजमेंट शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन एनालॉग से वह फॉल करती चली गई और नॉर्मलाइज हो गई। अब बचा क्या, फास्टिंग कंट्रोल नहीं हुई, फास्टिंग फिर से इंसुलिन से कंट्रोल नहीं होगी। हमें फास्टिंग कंट्रोल करने के लिए भी पहले ही बात हुई कि हमें एक इवनिंग में इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन एनपीएच या लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन ग्लार्जिन या डेटमिर देनी पड़ेगी, जो कि हमारी नेक्स्ट डे ये इवनिंग में दी तो अगले दिन सुबह बिफोर ब्रेकफास्ट वह कंट्रोल कर पाए। और इसको हम लोग कहते हैं मल्टीपल सबक्यूटेनियस इंजेक्शंस ऑफ इंसुलिन, एमएसआई रेजीम, जो कि बेसल बोलस रेजीम, जो कि अल्टीमेट रेजीम है। इससे हमारे हाई से हाई जो हाइपरग्लाइसीमिया वाले केसेस होते हैं बहुत अच्छे मैनेज हो जाते हैं। तो जब हमने इसमें 2 बार बिफोर ब्रेकफास्ट बिफोर लंच इंसुलिन शॉर्ट एक्टिंग दी और इवनिंग में ग्लार्जिन दी, उससे पेशेंट हमारा बहुत अच्छा मेंटेन हो गया और यह पेशेंट हमारा प्रॉपरली इस रेजिम को कंप्लाई किया। चलिए फटाफट लास्ट केस अपना समझ लेते हैं। डायबिटीज इन प्रेगनेंसी ऑन मेटफॉर्मिन 2000 लेते हुए ये लेडी आपके पास आई। आपने देखा यहाँ पे फास्टिंग भी इसकी सिग्निफिकेंटली एलिवेटेड और पीपी भी सिग्निफिकेंटली एलिवेटेड है। आपने कहा हम इसको एमएसआई शुरू करेंगे, 3 बार शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन देंगे, 1 टाइम ग्लार्जिन इंसुलिन देंगे, और उसको बताया। पेशेंट ने हाथ खड़े कर दिए, डॉक्टर साहब कुछ हो जाए मैं 4 इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगी, आप दे सकते हैं, 2 इंजेक्शन तक मैं बात मानूंगी आपकी, उसके आगे नहीं मानूंगी। देवलीना जी पूछिए पब्लिक से, अब 2 इंजेक्शन में काम चलाना है, कई बार हमें पेशेंट की माननी भी पड़ती है। तो 2 टाइम हम रेगुलर इंसुलिन दे दें, 2 टाइम एमएसपार्ट लिस्प्रोग्लूसाइड इंसुलिन दे दें, 2 बार एनपीएच दे दें, 2 बार डेटिमिर दे दें, या 2 बार प्रीमिक्स इंसुलिन दें। कौन से इंसुलिन आप इस पेशेंट में यूज करना चाहेंगे? 10 सेकेंड अपना आंसर लॉक कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ बताइए क्या रिजल्ट कहते हैं? बहुत बढ़िया, 58% लोग कहते हैं 2 टाइम्स प्रीमिक्स इंसुलिन हम देंगे, 33% लोग कहते हैं एनपीएच इंसुलिन। देखिए एनपीएच इंसुलिन देंगे तो एनपीएच इंसुलिन से पोस्ट मील कवरेज नहीं था, ये ध्यान है ना आपको, क्योंकि वो 4 घंटे बाद काम कर, मतलब 2 घंटे बाद काम करना आरंभ करती है, 6 से 8 घंटे पे पीक करती है, तो पीपी वैल्यू को कंट्रोल नहीं करती। पीपी वैल्यू को कंट्रोल करने के लिए हमें ये दोनों चाहिए, फास्टिंग वैल्यू को कंट्रोल करने के लिए हमें ये दोनों चाहिए। तो अब दोनों हाइपरग्लाइसीमिया है तो सबसे अच्छा है हम प्रीमिक्स इंसुलिन दें जिसमें दोनों का मिक्सचर है। किस प्रकार से? 2 बार रेगुलर इंसुलिन देते तो हमारी फास्टिंग छूट जाती या शॉर्ट एक्टिंग देते, 2 बार हम ग्लार्जिन या एनपीएच देते तो उससे पीपी छूट जाता। तो कॉम्प्रोमाइज क्या है? हम प्रीमिक्स इंसुलिन दें, चाहे रेगुलर इंसुलिन के साथ एनपीएच या शॉर्ट एक्टिंग एनालॉग्स के साथ एनपीएच। इससे हम शॉर्ट एक्टिंग कंपोनेंट से पीपी कंट्रोल कर लेंगे और इंटरमीडिएट एक्टिंग से हम नेक्स्ट समय की फास्टिंग कंट्रोल कर लेंगे। तो इस पेशेंट के लिए है 2 टाइम्स ऑफ प्रीमिक्स इंसुलिन। अब ये प्रीमिक्स इंसुलिन कैसे देनी है, इसको बेहतरीन रिकमेंडेशन है हमारी गवर्नमेंट की कि यदि हमें प्रीमिक्स इंसुलिन शुरू करनी है, अच्छा गवर्नमेंट रिकमेंडेशंस में इसमें प्रीमिक्स पर ही जोर दिया गया है, क्योंकि हमारी अभी भी जो स्पेशलिस्ट हैं उनको छोड़ के 80% जो डॉक्टर्स हैं वह प्रीमिक्स को ही यूज करते हैं। तो उन्होंने प्रीमिक्स को ही आधार बना के क्या कहा कि प्रेग्नेंट फीमेल विद जीडीएम मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी दी, कंट्रोल नहीं हुआ, 2 आवर्स वैल्यू 120 से ज्यादा है, 1 आवर 140 या 2 आवर्स 120 से, तो आप प्रीमिक्स 30/70 शुरू करिए 30 मिनट्स बिफोर, क्योंकि इसमें शॉर्ट एक्टिंग कंपोनेंट है जो कि खाने के बाद की शुगर को कंट्रोल करता है, इसलिए इसको आधा घंटा पहले देना है। और हमने देखा कि ब्रेकफास्ट के बाद अगर वैल्यू बढ़ के आ रही है तो हमने ब्रेकफास्ट के पहले 1 डे शुरू किया। अगर 120 से कम है तो कोई दिक्कत ही नहीं, हम वैसे ही कंटिन्यू करें, 120 से ज्यादा होगा तो ये हम शुरू करेंगे 1 डे। और इसके बाद अगर हमारी 120 से 160 के बीच में होती है तो हम
4 यूनिट दें, 160 से 200 है तो 6 यूनिट दें, मोर देन 200 है तो 8 यूनिट दें। बहुत हाई डोजेस इन्होंने नहीं बताई और यह कहा कि माइनर हाइपरग्लाइसीमिया में माइनर डोजेस, मॉडरेट हाइपरग्लाइसीमिया में मॉडरेट डोजेस और हाई सिग्निफिकेंटली हाई हाइपरग्लाइसीमिया में हाई डोजेस। तो मॉर्निंग में हमने ये प्री मिक्स इंसुलिन शुरू की। क्या देखा इसके बाद? फास्टिंग और 2 आवर्स वैल्यूज देखी 3 दिन के बाद। फास्टिंग कंट्रोल है तो हमें इवनिंग में देने की जरूरत ही नहीं। पीपी हमारी 120 से कम आ गई, सेम कंटिन्यू करिए। फास्टिंग कंट्रोल है, पीपी 120 से ज्यादा है, अभी पीपी कंट्रोल नहीं आए तो कितना बढ़ाइए? 2 यूनिट्स। ये बिल्कुल अपने इंडियन जो सर्कमस्टांसेस है उसको ध्यान में रखते हुए रिकमेंडेशन दी गई कि हम 2 यूनिट बढ़ाएं, फिर 3 दिन उसका रिस्पॉन्स देखें, फिर 2 यूनिट बढ़ाएं, फिर रिस्पॉन्स देखें और पेशेंट को अपने कंट्रोल में ले आए। अगर फास्टिंग भी बढ़ी आने लग गई तो हम इंसुलिन को 2 डोजेस में कर दें, हम इवनिंग में भी 4 यूनिट से आरंभ करें। तो अगर फास्टिंग हाइपरग्लाइसीमिया होगा तो हम इवनिंग में भी देंगे, पोस्ट प्रैंडियल हाइपरग्लाइसीमिया होगा तो हम मॉर्निंग में देंगे और 2 यूनिट करके उसकी डोजेस को बढ़ाएंगे। तो इस प्रकार से हम प्री मिक्स को 1 मॉर्निंग और 1 इवनिंग, सुबह ब्रेकफास्ट के आधा घंटे पहले और रात को डिनर के आधा घंटे पहले, इस समय से हम आरंभ करके अपने पेशेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। 3 दिनों पे हम फास्टिंग और पीपी वैल्यूज देखें। अगर प्री ब्रेकफास्ट फास्टिंग बढ़ी हो तो अगर पीपी बढ़ी हो खाने के बाद तो हम मॉर्निंग डोज को बढ़ाएं, अगर फास्टिंग बढ़ी हो तो हम इवनिंग डोज को बढ़ाएं, जब तक फास्टिंग 95 और पीपी एट 2 आवर्स 120 ना हो। तो स्टार्ट लो एंड गो स्लो इज द मूल मंत्र फॉर इंसुलिन थेरेपी, बी इट इन प्रेगनेंसी और बी इट अदरवाइज। तो हमने इस पेशेंट में क्या किया? हमने देखा फास्टिंग और पीपी दोनों बढ़ी हुई हैं, तो हमने 4 यूनिट्स बिफोर ब्रेकफास्ट दिया, 4 यूनिट्स बिफोर डिनर दिया और 2 यूनिट बढ़ाने को जो इन्होंने बताया है कि फास्टिंग ज़्यादा हो तो इवनिंग डोज बढ़ाओ, पीपी ज़्यादा है तो मॉर्निंग, मतलब उसके पहले वाली। ये बहुत ध्यान रखना है यहाँ पे। हम लोगों का रिएक्शन क्या होता है? हम लोगों का रिएक्शन रिएक्शन होता है, वह रिएक्टिव फिनोमेना होता है। हमने देखा फास्टिंग बढ़ी, हमने मॉर्निंग की डोज बढ़ा दी। क्यों भाई? फास्टिंग में काम इवनिंग डोज कर रही थी ना, तो फास्टिंग अगर अनकंट्रोल थी तो इवनिंग डोज बढ़ानी थी। हम क्या करते हैं? मॉर्निंग डोज बढ़ा देते हैं और दिन में हाइपो हो जाता है। फास्टिंग में हाइपो हुआ अगर तो हम मॉर्निंग की डोज बंद कर देते हैं तो दिन में हाइपर हो जाता है। तो हमारा पेशेंट हमेशा जो स्विंग्स पे चलता रहता है। तो एक चीज ध्यान रखिए, जो स्लाइडिंग स्केल हम लोग अपने हॉस्पिटल्स में लिख के रखते हैं, दैट्स द फर्स्ट थिंग टू डू। उसको हमें नहीं करना। जो कर रहा हो उसको इंसुलिन की समझ नहीं है। जो हम देखें जिस वक्त हाइपो हुआ या जिस वक्त हाइपर हुआ उस समय किस इंसुलिन का प्रभाव। मॉर्निंग में हुआ तो इवनिंग इंसुलिन को छेड़ेंगे, दिन में हुआ तो मॉर्निंग इंसुलिन को छेड़ेंगे। उससे हम उस पेशेंट को अपने मैनेज कर पाएंगे और रिएक्टिव अप्रोच से हम पेशेंट में और वैक्सीन नहीं करा देंगे। तो हमने इस पेशेंट में क्या किया? दोनों में 2 यूनिट बढ़ाया। फास्टिंग ज्यादा थी, इवनिंग में 2 यूनिट बढ़ाया। पीपी ज्यादा थी, मॉर्निंग में 2 यूनिट बढ़ाया, थोड़ा इंप्रूव की। फिर से 2 यूनिट बढ़ाया तो देखा अभी भी पहले से इंप्रूव की, लेकिन अभी भी काम नहीं चला। फिर से 2 यूनिट बढ़ाया, देखा फास्टिंग नियर नॉर्मल आ गई, पीपी हमारी एलिवेटेड है, तो केवल मॉर्निंग में बढ़ाया और अल्टीमेटली। तो इस प्रकार से स्टार्ट लो एंड गो स्लो अपने पेशेंट्स को हम बड़े आसानी से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग मित्रों यही अब समय भी पूरा हो रहा है। ये 2 लाइन का एक सवाल कि हमारी एक लेडी 32 ईयर्स ओल्ड फीमेल जीडीएम पहली प्रेगनेंसी में था। इस बार हमारे पास जब आई 32 वीक्स पे स्क्रीन करने पे हमने देखा फास्टिंग एलिवेटेड है, पोस्ट प्रैंडियल एलिवेटेड है। हमने इनको मेटफॉर्मिन शुरू की और मेटफॉर्मिन शुरू करते ही नेक्स्ट वैल्यूज हमारी एकदम से लो आ गई। अगली वैल्यू हमारी इतनी कम कैसे आ गई? पेशेंट को तो हमने इंसुलिन दी ये देख के कि आफ्टर ब्रेकफास्ट हमारा बहुत ज़्यादा है, 140 होना चाहिए, 64 ज़्यादा है। हमने बहुत हाई डोज तो दी नहीं, 8 यूनिट्स जो रिकमेंडेशंस में लिखी वही दी
और फास्टिंग के लिए हमने क्या किया कि आफ्टर डिनर मेटफॉर्मिन दे दी। फास्टिंग तो रिस्पॉन्ड की, पोस्ट प्रेंडियल में हाइपो हो गया। ये क्यों हुआ? जो बात मैं एक और आपको ध्यान में लाना चाहता हूँ वह यह है कि जो इस पेशेंट की 204 आई थी ना, कैसे आई थी? ग्लूकोज देने के बाद। ग्लूकोज पेशेंट रोज पीती है क्या? उसको रोज हम 75 ग्राम ग्लूकोज पिलाते हैं? नहीं, रोज तो वो रोटी दाल चावल खाती है। तो जब हम ग्लूकोज दे रहे हैं, चैलेंज टेस्ट कर रहे हैं, तो उस वैल्यू को हम डेली की वैल्यू से कंपेयर नहीं करेंगे। तो डिसीजन लेना है उस पोस्ट ग्लूकोज वैल्यू के अनुसार, हम डोज कैलकुलेट इंसुलिन की नहीं करेंगे। इस पेशेंट को हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे रखते, ओरल ड्रग पे रखते, एक बार प्रॉपर मील्स के बाद तब हम उसकी फास्टिंग पीपी देखते आफ्टर 3 days 5 days 7 days एज पर रिक्वायरमेंट, और तब उसके अनुसार हम उसको डोज प्रेस्क्राइब करते। हमने इंसुलिन उस डोज पे दी, उस वैल्यू पे दी जो ग्लूकोज पी के आई थी, और वह पेशेंट का डेली रूटीन नहीं। तो इस संदेश के साथ मैं आपको जो फिर जो कहते हैं कैरी होम मैसेज, कैरी होम मैसेज तो मैं होम में जाता है, होम में ही रह जाता, तो हमें मैसेज क्लिनिक में लेके जाना। तो कैरी क्लिनिक मैसेज, और कैरी क्लिनिक मैसेज भी दिमाग में पड़ा रहता है। तो ऐसा मैसेज जो कि आपके एक्शन में आए, वह क्या है? नॉर्मोग्लाइसीमिया अचीव करना, फास्टिंग लेस देन 95, 1 hour लेस देन 140, 2 hours लेस देन 120। हमें यह अचीव करना है। HbA1c लेस देन 6, या अगर डिफिकल्टी हो रही है तो लेस देन 6.5। मेटफॉर्मिन अप्रूव्ड ड्रग है कुछ एजेंसीज के द्वारा, कुछ एजेंसीज अभी भी कहती हैं कि कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड। क्लिबिनक्लामाइड दी जा सकती है यदि इंसुलिन हम नहीं यूज कर पा रहे हैं किसी भी कारण से, लेकिन देरी ना करें। पेशेंट अनकंट्रोल्ड है, पेशेंट कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो उसको इंसुलिन दें, स्वयं समझें और फिर फिजिशियन से काम करवाएं, निगाह रखें कैसा हो रहा है। अपनी समझ बहुत आवश्यक है। एक ही रूल जो मैं बार बार रिपीट करना चाहता हूँ, स्टार्ट लो एंड गो स्लो। इंसुलिन जो विश्व की सबसे, हमारे द्वारा इस्तेमाल होने वाली सभी दवाओं में जो सबसे ज्यादा, जिसका स्मॉलर थेरेप्यूटिक विंडो है, जो सेफ्टी का विंडो है, वह 2 दवाओं का, एक वारफेरिन और एक इंसुलिन। जरा सा ऊपर नीचे किया और अनसेफ, तो इंसुलिन बहुत बहुत किफायत से इस्तेमाल करना है, बहुत सावधानी से इस्तेमाल। तो कहा सुना बहुत गया, कहा भी सुना भी, कभी कभी जो ध्यान था, उससे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। लेकिन समझने वाले चाहिए, और समझने के बाद आज क्या चाहिए? जो करें। अब समझने, कहने, सुनने का समय बहुत चल रहा है। कोरोना काल में तो बहुत कहा जा रहा है, जरूरत से ज्यादा कहा जा रहा है और जरूरत से ज्यादा सुना जा रहा है, लेकिन अब हम करें। धन्यवाद। थैंक यू सर।